Hello everyone, so welcome to the Math Professor channel. So today we will start the next unit, that is linear algebra. Okay, and in that we will basically start with the introduction part, then vector spaces, linear transformations, okay, canonical forms, inner vector space. Okay, so that is our objective. Okay, so let's start with the introduction part. Okay, so without instead of diving directly into matrices, what are determinants, formulas and all, we all know that we have studied such kind of equations like this one. Okay, we have studied this in elementary level, and we can solve these two equations by substitution, right, or elimination. But suppose we have 100 of such equations, okay, and 100 variables and 100 of such equations. In order to solve those equations, it is quite difficult, or this method or substitution or the method of elimination is not efficient method. But what linear algebra do, it provides a compact way to write this thing. Okay, so what you can do, you can just write this thing as like this. Okay, right, like just multiply it. See, 1x plus y is equals to 5, and this is 2x minus y is equals to 1. Okay, so this one goes to this and this. Okay, this is how we multiply, right? So you can write this in the compact form like this. And suppose there are 100 of such equations, then it is quite easy to write or quite easy to solve such an expression, right? So this single matrix equation contains all the information in the original system, right? However, linear algebra not just only cover like the matrices. It in this study it is a study of like vector spaces, transformations, relationship between quantities. So here we commonly use a term, okay, that we call as vector. So this vector can be anything, like it can represent a position of the object. Okay, uh, it can represent a velocity of a particle, or a force acting on a body. Okay, features of data points, color values, like that. Okay, so for example, like suppose there is a vector 2 3. Okay, so it can be interpreted geometrically as a movement of 2 units horizontally and 3 units vertically. Okay, and if u and v, suppose u and v two vectors, then the expression au plus bv is called the linear combination. Okay, this is one of the central idea of the linear algebra. Okay, so and it leads to the concepts like span, linear independence, basis, dimensions. Okay, so matrices can also be can also represent transformations. Okay, that part we know, right? Like if we take and matrix is 0 1 0 2, okay, and we apply a transformation, so you will have 2x y. So this represent the stretch. So what this do geometrically was what this do is stretches the plane horizontally by 2 units by leaving the y-axis or the vertical direction unchanged. Okay, so stuff like this can be done in the linear algebra. Okay, now let me get back to the definition part. Okay, that how we start with this. So you may have heard a term, uh, internal composition and external composition. If not, we will start with that, but most probably you may have an idea about it, that what is an external composition, what is an internal composition. Okay, so let's start with that. Okay, so first let's start with internal composition. So as the name suggests, internal, so that means you will take 2 elements. Okay, you apply the operation and it will stay inside. Okay, so like a composition star, a composition
We will not take too much time on this. A composition star is said to be is said to be an internal composition on a non-empty set A if, when you say if for all A comma B belongs to A star B belongs to A, right? It's like closure property. Okay, and as a name says, it's internal composition, that whatever is happening internally inside a non-empty set. So what you do, you just take two elements. Okay, there is a set, there is a non-empty set. Okay, you take an element A and element B belongs to the set A. Okay, then you say this star is an internal composition if A star B belongs to A. Okay, then you call this star as the internal composition on A, right? For example, if you say like addition or is internal composition on this set, right? Like 0 plus 0 is 0. So this is the internal composition. This plus is an internal composition of this set, right? And what else? You can take you can have this multiplication. Okay, so is also is internal composition on 1, like 1, because we have only one element, so 1 cross 1 multiplied by 1 is 1, right? So this is an internal composition. Okay, plus is also is internal. I am writing in a short way, internal composition on R. Okay, R पे भी इंटरनल कंपोजिशन, R के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ आप, A कॉमा B, राइट? अगर मैं A कॉमा B कोई भी दो एलिमेंट उठाता हूँ कहाँ के, R के, और A प्लस B करता हूँ तो कहाँ का एलिमेंट मिलेगा, R का. सो दिस इज इंटरनल कंपोजिशन, राइट? So this is all we do in the internal composition. Okay, second composition that we will talk about is external composition. Mostly आपने जो नाम ध्यान रखने हैं वो है ना, हम गलती करते हैं, हम याद करने की कोशिश करते हैं, बट नेम विल टेल अ लॉट. ओके, कि नाम क्या है. अब देखो ये दूसरा कह रहा है एक्सटर्नल कंपोजिशन. अगेन कोई ऑपरेशन होगा, मान लो O. ओके, कोई ऑपरेशन है, ठीक है, जिसका नाम दे दिया हमने O. उसको हम कब कहेंगे कि ये आपके पास एक्सटर्नल कंपोजिशन है, कब कहेंगे, ठीक है. मैं इसको लिख देता हूँ, is said to be external composition. इसको शॉर्टली में लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V, कोई सेट है V ओवर F. if कब कहेंगे, if for all A belongs to F and V belongs to capital V, A V belongs to V and it is unique. Or you can say F V to V. Earlier in this case, what this star shows, you can also think of this like this, like as star is nothing but A cross A to A, right? You're taking two element A and then applying these two operations and you're getting the element of A. Okay, like this element of A. And here in external composition, okay, you took some element from here and then from here, and then you apply the operation. Okay, this operation or this you can name it whatever you want. Okay, आप ये ऑपरेशन लगाते हो एंड यू विल गेट द एलिमेंट ऑफ V. तो ये जो फील्ड का एलिमेंट, इसको आप कहते हो फील्ड. F यहाँ पे क्या है, फील्ड, ठीक
ठीक है, जब इसके एलिमेंट लेते हो तो इसको आप नोटेशन जनरली अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी लाइक ऐसे, और जब वी के एलिमेंट उठाते हो तो हम मोस्टली वी डब्ल्यू, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स उठाते हैं, या यू उठा लिया, ऐसे कुछ एलिमेंट्स लेते हैं। तो कहता है अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हो, ठीक है, जो बीच का ऑपरेशन आपने इन दोनों में लगाया हुआ है लगाते हो, तो एलिमेंट लास्ट में किसका आना चाहिए, वी का। अगर ये होता है तो हम कहेंगे जो ऑपरेशन है आपका वो दैट इज़ एन एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। वी ओवर एफ को आप ऐसे भी लिखते हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब देखो जैसे हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स कैसे कि मल्टीप्लिकेशन एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन आर ओवर आर है ना। मतलब अगर मैं बात करूँ आर की, एक्सटर्नल कंपोजिशन आर टू आर, यहाँ के दो एलिमेंट उठाऊँ, आर के दो एलिमेंट रियल नंबर से दो एलिमेंट रियल नंबर से उठाऊँ, और बीच में मल्टीप्लिकेशन ये है ऑपरेशन मेरा जो दिया है इसने वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों एलिमेंट्स को रियल नंबर के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है, ठीक है। सेकंड है, देखो जैसे मैंने उठा लिया इसको मैं बोलो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये है ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। ये बताना कि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है कि नहीं, ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो एक्स मेरी मल्टीप्लिकेशन आपके पास, और मैं क्या कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये ऑपरेशन एक्सटर्नल कंपोजिशन है आर ओवर सी, है कि नहीं, ठीक, क्वेश्चन ये है। अब देखो तो आंसर इज, व्हाट इज दिस आंसर, आंसर इज नो। वाई, ओवर का मतलब आपने जो एलिमेंट्स लेने वो फील्ड के लेने, ठीक है। जैसे ये अब ये पूछ रहा है सी क्रॉस आर टू आर मिलना चाहिए था मुझे, मतलब अगर एक यहाँ से एलिमेंट उठाऊँ मैं अल्फ़ा मान लिया, ठीक है, इसका नाम देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ अयोटा ले लिया यहाँ से मैंने, और आर से कोई एलिमेंट उठाऊँ तो मान लो 1 उठा लिया, ऑपरेशन के बीच में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के आंसर कितना आएगा अयोटा, पर आना क्या चाहिए था, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बट एक्सटर्नल कंपोजिशन कहती है कि आर में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कौन सा एक्सटर्नल कंपोजिशन है, कौन सा एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, ठीक है, या फिर कई बार हम इसको लिखते हैं लीनियर स्पेस, ठीक है, पर मोस्टली वी विल कॉल इट एज वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले जो आपने इसमें चीज़ याद रखनी है वो है फील्ड, ठीक है। लेट एफ, फील्ड में दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये डिपेंड करता है कैसे दे रखे हैं, पर फिलहाल हम ये डिनोटेटिंग इट, हम कैसे डिनोट कर रहे हैं इसको, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डॉट के साथ। बी ए फील्ड, पहले अपनी फील्ड अरेंज कर ली, ठीक है, फील्ड अरेंज कर लिया आपने, उसके बाद ठीक है, अब फील्ड अरेंज कर दी, उसके बाद हम मूव करेंगे कि आगे और चीज़ें क्या चाहिए हमें, ठीक है। जैसे इस केस में अब हम करेंगे सेट की बात, ठीक है। पहले आपके पास फील्ड आ गई, ठीक है, अगर आपके पास फील्ड आ गई उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद आपने देखना सेट, ठीक है, कि सेट कौन सा है आपके पास, नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, कैसा आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। सो लेट एफ बी अ फील्ड, ठीक है, ये फर्स्ट थिंग, देन ठीक है सेकंड, और एक और चीज़ ध्यान रखनी, जिसके एलिमेंट्स को, ठीक है, हम ये भी अभी यहीं क्लियर कर देते हैं, whose एलिमेंट्स और कॉल्ड एज स्केलर्स, ठीक है। तो उसके एलिमेंट्स को, जो फील्ड के एलिमेंट है उनको हम नाम फिक्स कर दिया, हम उनको स्केलर ही बुलाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ पहली डेफिनेशन में ये चीज़ ध्यान रखनी, फील्ड उठा ली जिसके एलिमेंट्स को हम स्केलर बोलेंगे, ठीक है। नाउ एंड लेट, नाउ अब सेकंड चीज़ आती है हमारे पास, एंड लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट उठा लिया हमने, whose, अब इसके एलिमेंट्स को क्या बुलाएंगे, whose एलिमेंट्स are known as
वेक्टर्स, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स को हम बोलेंगे वेक्टर्स, ठीक है। देन V ओवर F, ठीक है, कैसे हमें अभी बताया था मैंने कैसे लिखते हैं इसको। V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस इफ, कब होगा वेक्टर स्पेस? फर्स्ट there is an internal composition known as vector addition, define, किसके ऊपर डिफाइन होती है? डिफाइंड ओवर V with respect to which V plus is an abelian group, ठीक है। पहली क्या है, वो कह रहा है दो है, कब बोलेंगे उसको वेक्टर स्पेस? अगर उस पर एक इंटरनल कंपोजिशन डिफाइन है प्लस, जिसको हम कहते हैं वेक्टर एडिशन, वो क्या बना दे? V प्लस के साथ, वेक्टर्स के साथ, मतलब सेट कौन सा? V लिया हम, इसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बनाएंगे, उसके साथ वो एबिलियन ग्रुप बना दे, ठीक है। सेकंड वो कह रहा है कि देयर इज़ एन एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है, डिफाइंड, ये चीज़ ध्यान है, डिफाइंड ओवर, ओके सॉरी, डिफाइंड इन V ओवर F, ठीक है, नोन एज, जिसको हम नाम देते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्केलर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट A belongs to F and V belongs to capital B, alpha of V belongs to V, ठीक है, ये चीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेकंड, थर्ड, फॉर ऑल A B belongs to, अगर मैं दो एलिमेंट फील्ड से उठाऊँ, ठीक है, और एक एंड, दो एलिमेंट फील्ड से उठाऊँ, ठीक है, एंड फॉर ऑल, मान लो मेरे को V1 V कॉमा U उठा लिए V से, ठीक है, दो एलिमेंट उठाए फील्ड से, दो एलिमेंट उठाए वेक्टर स्पेस से, तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए? एक तो अगर मैं ये करूँ, ठीक है, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन, ठीक है, तो क्या है, ये बनना चाहिए, मतलब दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, एक तो ये होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं ये ले लूँ तो ये आना चाहिए AB प्लस BB, ठीक है। थर्ड, अगर ABV करूँ या फिर ABV करूँ तो सेम आंसर आना चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए, ठीक है। चौथा, वन डॉट V हमेशा V आना चाहिए, ठीक है। यहाँ वन बिलोंग्स कर रहा है F, वन बिलोंग कर रहा है F फील्ड से, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तब हम कहेंगे कि आपका V जो है विद रिस्पेक्ट टू V ओवर F जो है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन जो आपके पास दो दिए हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है, देखो क्या बोलेंगे, V है एक नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं दोबारा से, नॉन एम्प्टी सेट, फील्ड दे रखी है उसमें, ठीक है, फील्ड दे रखी है उसमें, फील्ड, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को आप बोलोगे स्केलर्स, इसके एलिमेंट्स को आप बोलोगे वेक्टर्स, ठीक है, दोनों सेट हैं ये, ठीक है। तो कह रहा है कि V एडिशन के साथ इंटरनल कंपोजिशन, का नाम दे दिया उसने इंटरनल कंपोजिशन, उसके साथ बनाना चाहिए एबिलियन ग्रुप, बनाना चाहिए। सेकंड, वो कह रहा है जो आपके पास V ओवर F दिया उसने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होना चाहिए, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन होनी चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल कंपोजिशन होने का मतलब है कि अगर आप कोई A उठाते हो F से और V उठाते हो V से, तो AB जो है वो V को बिलोंग करना चाहिए, तो मतलब ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो दो आप फील्ड के एलिमेंट उठाते हो और
दो आप वेक्टर्स के एलिमेंट उठाते हो, अगर ये दो चीज़ें उठाते हो तो क्या होना चाहिए, चार चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या, एक वेक्टर का एलिमेंट, एक स्केलर लिया और दो वेक्टर्स लिए, तो ये दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। सेकंड, अगर मान लो ऐसे है तो ये आना चाहिए ए बी बी बी, ठीक है। तीसरा, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और चौथी, वन डॉट बी जो है वो वी आना चाहिए। यहाँ वन क्या है, वन बिलोंग्स टू एफ, यूनिटी है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तब हम कहेंगे कि वो क्या है, वेक्टर स्पेस, ठीक है। थोड़ा लंबा चौड़ा काम है बट यू हैव टू डू इट, ठीक है। हालांकि इतनी सारी चीज़ें हम, आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतनी सारी चीज़ें हम चेक नहीं करते, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, मतलब आपको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, जैसे लेट एफ या फिर लेट के बी अ फील्ड, के कोई फील्ड है, देन इट इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ठीक है। तो मान लो इसका कोई सब फील्ड है एफ, तो के ओवर एफ हमेशा वेक्टर स्पेस होगा, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो एफ उसकी क्या है, सब फील्ड, के फील्ड है और एफ उसकी सब फील्ड है, तब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तब हम डायरेक्टली बोल देंगे कि वो वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक है। चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, बट इट इज़ ट्रू, ठीक है। सब फील्ड है तब तो प्रॉब्लम नहीं, अगर सुपर फील्ड है तो इशू है, ठीक है। मतलब ये इसमें कंटेन होना चाहिए, कंटेनमेंट मान लो या इसको सब फील्ड मान लो, अगर ये इसकी के सब फील्ड होगी एफ की, के तब नहीं बनेगा, ठीक है। तब पॉसिबिलिटी है कि वो ना बने, ठीक है। जैसे क्यू ओवर आर, ये सब फील्ड नहीं बनाती, ये सॉरी ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाती, क्यों, क्योंकि अगर मैं एक आर का एलिमेंट लूँगा, जैसे मैंने मान लो √2 उठा लिया, उसको रैशनल से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1/2 से, तो ये क्या आएगा, √2/2, जो किसको बिलोंग करेगा, आर को। तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं कर रही। एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होता है, एक फील्ड से उठाना है और एक वेक्टर से उठाना है। वेक्टर उठाया मैंने, फील्ड से स्केलर उठाया, एक स्केलर उठाया, तो यहाँ इस केस में हमारे पास स्केलर कहाँ से आएगा, कौन सी फील्ड है इस केस में हमारे पास, इस केस में फील्ड है आर, और वेक्टर वी है, वेक्टर कहाँ से आ रहा है, क्यू से। तो जो आंसर आना चाहिए वो किस में जाना चाहिए था, रैशनल्स पे, पर जाके इसमें रहा है वो रियल्स में, तो इसका मतलब ये फील्ड नहीं बनाती है, सॉरी ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स आपने याद रखने, अब और भी बना सकते हो, क्यू ओवर सी भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, आर ओवर सी भी नहीं बनता, ठीक है। तो ये सी ओवर आर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जांपल जो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। एक मैट्रिक्स लिया आपने, ठीक है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स ली, ठीक है। उस एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स आप कहाँ से उठा रहे हो, इसके एलिमेंट्स होते हैं किस फॉर्म में होंगे, ऐसे होंगे ना, ए आई जे, ये एलिमेंट्स कहाँ से उठा रहे हो, फील्ड से, ये एलिमेंट कहाँ से आ रहे हो, फील्ड पे, फील्ड से, ठीक है। इस वेक्टर स्पेस ओवर वेक्टर एडिशन एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, जो वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन का मतलब है यहाँ एडिशन ऑफ, ठीक है, दो ऑपरेशन थे ना, एक इंटरनल कंपोजिशन था, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन था। तो कह रहा है इंटरनल क्या है, कुछ नहीं, बस एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसे हम एडिशन करते हैं मैट्रिस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। दो ऑपरेशन तो इसमें डिफाइन कर दिया कि ये है वो ऑपरेशन, ठीक है। वैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C एज वेल एज ओवर R,
राइट, अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर मान लो कुछ इस तरह से टप्पल्स की फॉर्म में, दैट इज एफ क्रॉस अप टू सॉन टू एन टाइम्स एफ, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, टप्पल्स है A1 A2 अप टू सॉन टू AN, या AI बिलोंग्स टू F, ठीक है, I बिलोंग टू 1 2 3 अप टू सॉन टू N, ऐसे टप्पल्स, ठीक है। तो ये भी अगर इसका मैं FN ओवर F निकालूंगा तो ये भी बनाएगी वेक्टर, ठीक है, दोनों सेम रखे हैं तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के लिए RN ओवर R ये भी बनाता है, CN ओवर C, ठीक है, ये भी बनाता है, ठीक है, ऐसे आपको CN ओवर R, ठीक है, ये सारे वेक्टर स्पेस बनाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, वो आपको डिफाइन करके दिखा। जैसे अल्फ़ा, अगर मैंने यहाँ से एलिमेंट उठा लूँ, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, ठीक है, या फिर इसको अगर वेक्टर्स में बात करें तो v मान लो मेरे पास है v1 v2 अप टू सॉन टू vn, और w मेरे पास है w1 w2 wn। तो दो टप्पल्स को आप ऐड कैसे करते हैं, डिफाइन करनी पड़ेगी ना आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, वो टर्म वाइज टर्म ऐड हो जाएंगे, v2 w2 अप टू सॉन टू vn w, ठीक है, ऐसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप ऐसे लिख सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मान लो अल्फ़ा मैंने कोई स्केलर उठाया, स्केलर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सॉन टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ऑफ v कितना आएगा, आप इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 अल्फ़ा v, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी। अब इन दोनों के साथ आप बाकी प्रॉपर्टी चेक करोगे, मतलब एडिशन के साथ ग्रुप बनाना, अबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के साथ एक तो एक्सटर्नल कंपोजिशन जो तो उसने डिफाइन कर दिया आपके पास, ठीक है। क्योंकि ये किसका एलिमेंट, देखो किसके एलिमेंट है, ये तो अल्टीमेटली वी एन का एलिमेंट है, वी एन ओवर एफ, ठीक है। तो ये तो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी प्रॉपर्टी चेक करनी है, कौन सी, दो एलिमेंट फील्ड के, दो आप स्केलर्स उठाओ, वेक्टर्स उठाओ, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करो ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एसोसिएटिविटी चेक करो, ठीक है, वहाँ पे, और यूनिटी एलिमेंट्स देखो, ठीक है, 1 डॉट v इक्वल v आना चाहिए, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे इस केस में एग्जांपल्स बन जाएंगे जैसे ऐसे Q3 ओवर R, ठीक है, आप चेक करो इनको कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये बनेगा वेक्टर स्पेस के, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि मान लो Q3, मान लो मैंने ये एलिमेंट है 1 2 3, Q3 को बिलोंग कर रहा है, Q3 का मतलब है Q क्रॉस मतलब रैशनल है, तीनों रैशनल हैं। अब एक स्केलर उठाना है, मान लो स्केलर मैंने उठा लिया √2, ठीक है, तो स्केलर को जो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर मतलब इसका एलिमेंट आना चाहिए, बट ये बन क्या रहा है, √2 2√2 √2 3, बट ये तो रैशनल में जाते ही नहीं, √2 तो रैशनल में जाते ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्यों वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर स्पेस वी एन जेड पी भी मुझे पता है, ये भी फील्ड होती है, ठीक, कितने एलिमेंट्स हैं इस वेक्टर स्पेस में। तो क्या करते हैं हम करते हैं, इसको लिखते हैं वी एन जेड पी का क्या मतलब है, ठीक है, वी एन या बेस ऐसे लिख लो या आप पावर में लिख लो की बात है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम पीछे कहते हैं ऐसे लिख सकते, तो इसका मतलब है V1 V2 अप टू सॉन टू वी एन, ठीक है। और यहाँ वी आई कहाँ से आ रही है, जेड पी से, ठीक है। अगर आपको यहाँ वेक्टर्स का फील आ रहा है तो आप इसको थोड़ा वो कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट होंगे ना, जो इसमें अंदर एलिमेंट होंगे वो फील्ड के होंगे, तो इसको आप ऐसे लिखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सॉन टू अल्फ़ा, ठीक है। अब
अल्फ़ा कितनी चॉइसेस अल्फ़ा के पास, कहाँ से आ रही है अल्फ़ा कहाँ से आ रहा है, पी से। अल्फ़ा इस कहाँ से आ रहा है, पी से। जेड पी से, मतलब इसके लिए पी चॉइसेस, इसके लिए पी चॉइसेस, इसके लिए पी चॉइसेस, तो टोटल कितने एन। ठीक है, तो इसका टोटल है पी रेज़ टू पावर एन। तो ये होगी कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी किसकी, वेक्टर स्पेस की। ठीक है, तो एग्जांपल्स अपने उससे बताएगा। हाँ, R2/R फील्ड बनाता, वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे कह सकते हो Rn/R भी वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, ऐसे आप एग्जांपल्स कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी अब ये ध्यान, साथ में ये भी ध्यान रखना हमने कि ऑपरेशन क्या है। कई बार ऑपरेशन वो खुद डिफाइन करके देता है। ठीक है, कई बार ऑपरेशन खुद डिफाइन करके देता है। जैसे एग्जांपल करते हैं, वैसे केसेस में आपको चेक करना, वहाँ नहीं आँखें मीट के ना, आँखें बंद करके वहाँ कर देना, लगा देना। ठीक है, जैसे मान लो R2/R दिए। ठीक है, बट उसने ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं। कैसे, मान लो V कोई वेक्टर है, V1 V2, R2 का है तो R2 का एलिमेंट ऐसे दिखेगा। ठीक है, और W कोई एलिमेंट है, W1, ये भी R2 का। तो एडिशन कैसे डिफाइन कर रहा है, देखो एडिशन डिफाइन कर रहा है, कैसे ऐड करेंगे, V1 + W1, Z। ठीक है, मतलब ये दोनों वेक्टर, इन दोनों को कोई काम नहीं है। ठीक है, ये दोनों ज़ीरो हो जा रहे हैं, ये वाले। तो एडिशन हमने ऐसे करनी है। और अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई अल्फ़ा V1, अल्फ़ा V2, मल्टीप्लाई ऐसे करो अल्फ़ा इसके साथ। ठीक है, मतलब अलग अलग। ठीक है, इसके साथ अलग से चला जाएगा अल्फ़ा, और इसके साथ अल्फ़ा अलग से चला जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो अब बताना है कि वो तो अब बताना है कि ये आपके पास इन ऑपरेशंस के साथ ये वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, ग्रुप थ्योरी आप करके आए हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, मैं यही निकालने की कोशिश करता हूँ, मतलब B + एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए ना एडिशन के साथ। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, वो पहले हम यही देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इसकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की, देखो अगर मान लो दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, V बिलोंग्स टू R2, मैंने दो वेक्टर से कोई एलिमेंट उठाया। ठीक है, तो देखो ये तो R2 का एलिमेंट है, एडिशन डिफाइन कर ली इसलिए R2 का एलिमेंट। ठीक है, तो क्लोजर में तो दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिविटी में कोई इशू नहीं है, आइडेंटिटी दिखता है, आइडेंटिटी आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ठीक है, अगर मैं मान लूँ V1 V2, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि V1 और V2 ही आ जाए मेरे पास, आइडेंटिटी ऐसे निकलती है। इसमें क्या डालूँ कि V1 और V2 ही आ जाए सेम। मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको X और Y मान लेता हूँ। ठीक है, अगर X और Y मान लिया हमने, तो क्या है हमारे पास, V1 ऑपरेशन लगा दो। कैसे डिफाइन करता हूँ, कहता है फर्स्ट वाले ऐड होंगे, X फर्स्ट वाले ऐड होंगे, यही कह रहा हूँ ऑपरेशन एडिशन वाला, फर्स्ट वाले ऐड होंगे, बस बाकी को कोई काम नहीं। 0 = V1 V2, इसका मतलब X की वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, X की वैल्यू तो 0 आ गई, और V2 वो क्या आ रहा है, 0। ठीक है, V2 क्या आ रहा है, 0। तो Y की वैल्यू तो आ ही नहीं रही है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। सिर्फ कैसे एलिमेंट्स का ही, और कब आएगा ये सेम इसके बाबू, कब आएगा, जब V2 0 होगा, अदरवाइज कभी आएगा नहीं। तभी आएगा ना, अगर V2 0 पर R2 में तो सारे, ये R2 में तो 1 2 भी आते हैं। 1 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि 1 2 ही आ जाए, बताओ ज़रा। यहाँ तो 0 है, यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ तो कोई वैल्यू आनी चाहिए ना।
तो यहाँ तो कोई वो वैल्यू मिल नहीं रही, ठीक है, यहाँ तो वो वैल्यू मिल नहीं रही, कि मिल रही है, मिल रही वो वैल्यू भी नहीं मिल रही, यहाँ वाई की वैल्यू ठीक है। ऐसे ही है, ठीक है। कहने का मतलब है देखो, अगर मान लो आप बोल रहे हो, देखो अगर आप बोल रहे हो, देखो आप बोल रहे हो 0 0 आइडेंटिटी ठीक है, आप बोलो 0 0 आइडेंटिटी, तो फिर तो ठीक है। देखो अगर मान लो मैंने 1 2 का ऑर्डर निकालना है, तो आप कहोगे 0 0, तो ये तो भाई ठीक है, 1 2 एडी ऑपरेशन कहता है कि आपने देखो ऑपरेशन करेगा, जब आप ऑपरेशन लगाओगे आना, ये तो आना चाहिए, ये तो तभी आइडेंटिटी 0 हुई है। पर ये और वो कहता क्या, एडिशन जो दी हुई आपकी वो कहती है कि इसको ऐड करेंगे 1 आएगा, और ये तो 0 देगा हमेशा, तो 1 2 को ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा, 1 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1 2, ठीक है। तो आइडेंटिटी मिलेगी नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, तो जब ऑपरेशन दिया हो तो आपने अलग से चेक करना है कि वो वेक्टर स्पेस बना रहा है कि नहीं बना रहा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल है, ठीक है, वो है पॉलीनोमियल्स का, ठीक है। मान लो ये कोई पॉलीनोमियल है, ठीक है, नोटेशन ऐसे दी है, इट डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल, ठीक है। नोटेशन जरूरी है क्योंकि काम आती है, ठीक है, पूछता है बार बार, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ लिखेगा नहीं, सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स इन वेरिएबल x, ठीक है, x वेरिएबल में whose coefficients are from field f, ठीक है। ये जो फील्ड है यहाँ से इसके कोफिशिएंट आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो इसमें सारे वो पॉलीनोमियल आएंगे तो x में है, जैसे ये ax² bx + c, सारे वो पॉलीनोमियल, तो जो इसके कोफिशिएंट है लाइक a b c, ये कहाँ से आ रहे होंगे, फील्ड से, मतलब r से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आर एक्स को लिखूँगा कैसे, पॉलीनोमियल्स है ना, तो कैसे आएगा a0 a1x प्लस अप टू साउंड, अंत तो कोई है नहीं कि पावर कितनी भी जा सकती है, तो ए आई कहाँ से आ रही है, यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको जर्नल लिखता हूँ फिलहाल, ठीक है, ये फील्ड से आ रही है, तो ये नोटेशन, ठीक है, ये मतलब इसका, तो कह रहा है ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। दिस ऑल्सो फॉर्म्स वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। जैसे देखो अगर कोई दो एलिमेंट उठाओ अल्फ़ा, दो एलिमेंट उठाओ v1 एंड w, अगर v इसका है, इसका मतलब इसकी फॉर्म कुछ है, पॉलिनोमियल होगा i1 to 0 to इन्फिनिटी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m, ठीक, कुछ m डिग्री कुछ पॉलिनोमियल होगा a i x रेज़ टू पावर i, और a i बिलोंग्स टू f फील्ड से। वैसे w भी क्या होगा, कोई पॉलिनोमियल होगा जिसके कोफिशिएंट कुछ अलग होंगे, ये बी आई बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो एडिशन कैसे डिफाइन करनी है, एडिशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, समेशन i1 to m a i प्लस b i x i, ठीक है। तो ऐसे हमने उसको एडिशन डिफाइन कर दी, ठीक है। डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी पहले कि कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन तो वही है कि इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मतलब अल्फ़ा टाइम अगर b करूँगा मैं, तो ये यही होगा i1 to m अल्फ़ा ऑफ ए आई एक्स आई टू पावर आई, ठीक है, एक्स
रेज़ टू पावर आई, ठीक है ऐसे। ये इसके लिए मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी ग्रुप बना, ये भी आपके पास वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे सी एक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, ये फील्ड बनाता है ओवर सी भी फील्ड बनाएगा, ओवर आर भी ले लो, ये भी फील्ड बनाएगा, ओवर क्यू भी फील्ड बनाएगा, ठीक है। आर एक्स ले लो मतलब सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसके कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं, आर एक्स से, ठीक है। ये आर के ऊपर भी फील्ड बनाएगा, ठीक है। ये क्यू के ऊपर भी फील्ड बनाएगा, सब फील्ड है ना, ठीक है। वैसे क्यू एक्स, ठीक है, सारे पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट रैशनल है, ये ओवर क्यू भी फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n, ठीक है। ये टर्म याद रखनी है आपने, उसने फिक्स कर दिया। वो कह रहा है ये पॉलिनोमियल, सिर्फ इसी तरह की पॉलिनोमियल की बात कर रहा है कि क्या ये फील्ड बनाएगा, ये जिसकी डिग्री n है, ये फील्ड बनाएगा, ये पूछ रहा है कि डिग्री n ही होनी चाहिए, तो ये डिग्री बनाएगा नहीं, क्यों। आप ऐसे कर सकते हो, देखो अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये बनाएगा नहीं, क्यों बनाएगा। देखो अगर मैं ऐड कर दूँ, v1 मैंने ले लिया है, अगर n मेरा मान लो 2 है, अब n के लिए भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखो, एक मैंने ये ले लिया सिंपल सा, और मैंने डबल दूसरा ये ले लिया, देखो दोनों की डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, n। अब ऐड करो दोनों को, डिग्री कितनी आ रही है 1, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिग्री कितने, सॉरी कांस्टेंट पॉइंट डिग्री n तो है नहीं इसकी, पर वो कह रहा था ये एलिमेंट मिलना कि इसमें चाहिए था b में, और b में अगर होता तो डिग्री कितनी होती n, पर डिग्री इसकी n तो है नहीं, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं है, नॉट ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल है जो कई बार इसे पूछ लेता है, ठीक है। हालांकि अगर ये बोले कि डिग्री अप टू n, ठीक है, या फिर ये ऐसे पूछे कि वो सारे पॉलिनोमियल्स सच दैट डिग्री ऑफ px जो है वो है लेस देन इक्वल टू n, ये वेक्टर, ये बनाता है वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये बनाता है वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये एग्जाम्पल एक ही भी हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, ठीक है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एस कोई मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और एस है सबसेट ऑफ आर, ठीक है। आर का सबसेट, देन सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस है सच दैट एफ इज एस टू आर, सारे फंक्शन उठा दिए, तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस बनाता है, और इसमें कहते हैं दो फंक्शन, इसमें देखो इसमें वेक्टर्स में इसमें एलिमेंट्स कैसे फंक्शंस, तो कह रहा है दो फंक्शंस को ऐड कैसे करेंगे, एफ प्लस जी, दो को ऐड कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, प्लस एस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ए के कौन से आ रहा है, फील्ड से, और एक्स तो एस से है ही, ठीक है। तो ये भी बनाता है वेक्टर स्पेस ओवर आर, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ऐसे आ जाता है, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। कर सकते हो कैसे वेक्टर स्पेस बनाएगा वो, ठीक है। अलजेब्रा पढ़ा है आपने, ठीक है। इनका कैसे अगर दो सीक्वेंसेस है ए एन बी एन, तो क्या बनेगा ए एन प्लस बी एन, ठीक है। ये डिफ़ाइन कर दिया मैंने, और अगर कोई अल्फ़ा टाइम्स ए एन करता है,
इसका मतलब वो है अल्फ़ा टाइम्स ए अंदर लिखिए। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मैंने डिफ़ाइन कर दी। देखो जो भी जिस भी टाइप का आप एग्जाम्पल होगी वहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करेंगे, अदरवाइज़ यूजुअल होगा। ठीक है, अब देखो जैसे एक हमने कर ली ये, मैं इसको थोड़ा जनरल तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, एक तो हमने देख ली ये एफ एन ओवर एफ, या फिर इसको जनरल लिखता हूँ मैं एफ एन ओवर एफ, ये भी बनाता है। इसमें एडिशन का, इसमें टप्पल्स हैं तो इसकी टप्पल्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उसने डिफ़ाइन करी है। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वहाँ डिफ़ाइन करी है। ठीक है, फिर टप्पल्स की बात कर ली हमने, फंक्शंस की बात कर ली। ठीक है, फंक्शंस की बात कर ली हमने। फंक्शंस में उसने ये डिफ़ाइन किया था कैसे हमने स्केलर दो फंक्शंस को ऐड करना है। ठीक है, एफ प्लस जी और अल्फ़ा टाइम एफ जी, यहाँ उसने फंक्शंस को बता दिया कैसे फंक्शंस को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिसेस की बात कर ली हमने। ठीक है, मैट्रिसेस की बात कर ली कि दो मैट्रिसेस हैं उनको एडिशन की जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होती है और मल्टीप्लिकेशन जैसे एडिशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है जैसे। ठीक है, ये डिफ़ाइन कर दी। ठीक है, कहने का मतलब कि एडिशन और उसने एलिमेंट्स को दे रखा है कि कैसे उनको उन एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है और कैसे वहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो कई बार तो आपको याद रखना पड़ता है यूजुअल ऑपरेशन कौन सी होता है, कई बार उसने डिफ़ाइन करके दिया होता है। ठीक है, एक यहाँ फंक्शंस का आ गया। ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल्स का था, सॉरी ये आपका पॉलिनोमियल्स का था। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स का था कि अगर दो पॉलिनोमियल है पी एक्स और जी एक्स, कैसे उनको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है किसी पॉलिनोमियल से, मैंने किसी स्केलर को, तो वैसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ उसने फंक्शंस का बता दिया। ठीक है, तो ये कैसे है, ठीक है, कैसे उसने डिफ़ाइन किया या क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना। ऑपरेशंस क्या है, ठीक है, एडिशन कैसे डिफ़ाइन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टप्पल्स की बात कर ली हमने, पॉलिनोमियल्स की बात कर ली। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स बनते हैं। ठीक है, फील्ड की देख ली हमने। ठीक है, सेम फील्ड वो अपने सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है कर लोगे आप इसे, कुछ एग्जांपल्स करने हैं आपने इसकी प्रैक्टिस, अगर कुछ नहीं पता लगेगा देन यू कैन आस्क। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पोर्शन इसका, दैट इज़ सब स्पेस। जैसे आपने सब ग्रुप पढ़ा था, quite similar to that is a vector space। एक डेफिनेशन तो वही थी जैसे वहाँ सब ग्रुप की थी कि अगर कोई सबसेट उठाओ, ठीक है, अगर वो खुद में ही ग्रुप है तो भी खुद भी वो क्या होगा, सबसेट। तो पहले तो सबसेट होना चाहिए, फिर अगर वो इटसेल्फ ग्रुप है तो वो सब ग्रुप होगा। वैसे ही सब स्पेस में बात है कि कोई डब्ल्यू इसका सबसेट है, पहले तो वी का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ वी ओवर एफ क्या है, फील्ड है। ठीक है, ठीक है, यहाँ वी जो है ओवर एफ क्या बना रही है, वेक्टर स्पेस, ये हमें पता है पहले से। डब्ल्यू जो है वी का सबसेट ले लिया, तो कह रहा है कि अगर वी इटसेल्फ खुद में ही वो वेक्टर स्पेस है, मतलब वही सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है, फिर चार दूसरी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तब हम कहेंगे ठीक है, प्रॉपर्टीज इंटरनल कंपोजिशन, फिर एडिशन के साथ बिलियन ग्रुप बनाना, मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे वो एक्सटर्नल कंपोजिशन, फिर चार प्रॉपर्टीज अलग से। ठीक है, वो सारा सेटिस्फाई कर रहा है तो डब्ल्यू भी आपके पास सब स्पेस होगा। ठीक है, तो ऐसे ये इसने बस एक तरीका बता दिया कि हाँ ऐसे हम बता सकते हैं कि वो सब स्पेस है। ठीक है, अब कौन कौन से सब स्पेस होते हैं, कितने सब स्पेस होते हैं, किस सब स्पेस को क्या नाम देते हैं, वो हमने देखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये है वेक्टर स्पेस, ये है हमारा वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, तो कितने सब स्पेस पे, क्योंकि नाम होते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर। देखो, एक तो खुद सब स्पेस की खुद अपना सब स्पेस तो है ही, अपना सबसेट है, वेक्टर स्पेस भी है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आता है ज़ीरो सब स्पेस, ज़ीरो जिसमें एलिमेंट सिर्फ एक है। और तीसरा आता है कोई एनी अदर, कोई सबसेट उठाओ इसका, ठीक है, वो वेक्टर स्पेस बन जाए। ठीक है, तो जो ये दो हैं इनको आप कहते हो इम्प्रॉपर। कई बार पूछ लेता है कि कितने इम्प्रॉपर हैं कितने, और इसको आप कहते हो प्रॉपर।
कि मतलब ये प्रॉपर सब स्पेस है, दैट इज़ क्योंकि इसमें प्रॉपर कंटेनमेंट थी। ये देखो ये तो सेम भी इक्वल टू ये तो सेम ही है ना, ठीक। और ये तो ट्रिवियल होते हैं, तो इन दोनों को हम कहते हैं इम्प्रॉपर। और जो एनी जिसमें प्रॉपर सब, जैसे मान लो डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ, अगर ऐसा कुछ है तब हम कहेंगे कि वो कैसा है, सब स्पेस है, प्रॉपर सब स्पेस। ठीक है, जैसे अब बात करते हैं, जैसे हमारे पास R3 ओवर R है, ठीक है। अगर मुझे कितने सब स्पेस है इसके पास, तो एक तो मुझे पता खुद ही इम्प्रॉपर तो हुआ ही इसके पास दो इम्प्रॉपर तो हैं। अब बाकी देखते हैं इसके पास कौन कौन से सब स्पेस। तो बाकी बहुत से बना सकते हो आप इससे, जैसे एक ये बना दिया, ठीक, ओवर R, एक ये बना दिया, या फिर 0 को इधर ले आए, ओवर R ये भी बना देगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये तो यही है ना, R क्रॉस R ओवर R। तो अब ऐसे में अब इसको ये कभी फर्स्ट वाले को यहाँ से 0 वेक्टर उठा लो, कहीं एक बार इस तरीके से उठा लो, एक बार इधर से उठा लो, तो ये 3-4 तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप सब स्पेसेस भी बना सकते हो, ठीक है। तो फिर पूछ सकता है वो आपको, ठीक है ना। अब आपके पास एक रिज़ल्ट आता है, ठीक है, जिसमें आप ये बता सकते हो कि क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि वो किसी सब कुछ सबसेट जो है वेक्टर स्पेस का, वो सब स्पेस बन जाए, ठीक है। इफ़ V ओवर F इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस है, देन अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब यही काफ़ी है और यही ज़रूरी और यही काफ़ी है, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट लिया था ना हमने, W ऑफ V टू बी अ सबस्पेस, इसका ऑफ V ऑफ F कब सबस्पेस होगा, इज़ दैट क्या है, फॉर ऑल V W बिलोंग्स टू W, दो एलिमेंट उठाओ, वेक्टर्स उठाओ V सबसेट ऑफ V के, एंड एक एलिमेंट उठाया मैंने कहाँ से, फील्ड से, सच दैट अल्फ़ा V प्लस W बिलोंग्स टू S। अगर ये होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट उस वेक्टर स्पेस V का ऑफ V का, ठीक है, वो सब स्पेस बना रहा है V ऑफ F का, ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो, ठीक है। अब कैसे इस कंडीशन, ये क्यों सफिशिएंट नेसेसरी और सफिशिएंट है वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। क्यों सिर्फ यही काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा डीपर एनालिसिस नहीं करनी हमने। क्यों, अगर तो W इज़ अ सब स्पेस, पहले हमने मान लिया कि वो सब स्पेस है, तो हम डेफिनेशन से पता कि अगर सब स्पेस है तो खुद क्या होगा, वेक्टर स्पेस। अगर वेक्टर स्पेस है तो हमें पता है कि अगर मैं कोई अल्फ़ा उठाऊँ फील्ड से और वेक्टर से और V से कोई वेक्टर उठाऊँ तो वो W में होगा, ठीक है, होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करेगी उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अल्फ़ा V प्लस W ये भी किस में बिलोंग करे, W में बिलोंग करे। ये इंटरनल कंपोजिशन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज अगेन इन वेक्टर, ये वेक्टर है, ये देखो ये W इसमें चला गया ना तो वेक्टर बन गया है। अब ये इसको एक वेक्टर की तरह देखो और एक नया वेक्टर है, दो वेक्टर्स की एडिशन किस में जाती है, इंटरनल कंपोजिशन में, तो ये होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब पहले ये एक पार्ट तो प्रूव हो गया इसका, ये वाला, ठीक है। सेकंड, अगर वो मान लो ये चीज़ें होल्ड करती हैं क्या, अगर कन्वर्स पार्ट देखें, अगर ये नेसेसरी पार्ट होगा, सफिशिएंट पार्ट देखो, अगर फॉर ऑल अल्फ़ा
अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ एंड v1 v2 बिलोंग्स टू w। दो वेक्टर्स उठा लिए मैंने यहाँ से और एक फील्ड से उठा लिया। ठीक है, अब मुझे पता है ये अब मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास ये तो गिवन है। अब मैंने बताना है कि ये वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस बताने के लिए क्या काम करना पड़ता है, वही सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ती है। तो देखो, अगर तो अल्फ़ा 1 है, क्योंकि अल्फ़ा फील्ड से कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इसका मतलब v प्लस w क्या आ गया, w। क्लोजर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव वो तो डायरेक्टली होता है, ठीक है, उसको तो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इन्वर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू -1 है और v एंड w आर्बिट्रेरी है, ठीक है, तो v की w माइनस v के बराबर आ गया। ठीक है, अल्फ़ा, चलो अगर मान लो अल्फ़ा 1 है और w इक्वल्स टू, या ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी है ना कुछ, देखो आर्बिट्रेरी कुछ भी है, तो अल्फ़ा की अगर -1 है तो ये बन जाएगा, इसका मतलब 0 भी मिल गया, इससे आइडेंटिटी भी मिल गई इसमें। ठीक है, अब इस इन्वर्स भी मिल जाएगा इसमें, अगर अल्फ़ा 0 हो गया, सॉरी अल्फ़ा -1 हो गया, अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू -1 डाल दूँ, ठीक है, और w को 0 पुट कर दूँ, तो -v, अगर v है तो -v भी, तो इन्वर्स भी मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई, इन्वर्स मिल गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है। और थर्ड केस, अगर w 0 है तो अल्फ़ा ऑफ w क्या आएगा, बिलोंग्स टू w। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रही है, या जिसको आप एक्सटर्नल कंपोजिशन करें वो भी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो आप ऐसे सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी शो इट। ठीक है, आप बाकी प्रॉपर्टीज़ भी शो कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, कि कब कोई सब स्पेस है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास पहले एक मदर स्पेस है ये, ठीक है, जिसकी बात करते हैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वेक्टर स्पेस है कैसे, x y z, ठीक है, सच दैट x y z बिलोंग्स टू r ओवर r, ओवर r। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है, मतलब R3 में हम बात करें तो हम R3 में। ठीक है, अब हम बोलेंगे कौन सा इसका सब स्पेस है। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है, इसका मुझे पता है। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है। नीचे मैं कुछ लिखूँगा, कुछ एग्जांपल्स लिखूँगा कि अब आपने बताना है कि क्या वो सब स्पेस हैं कि नहीं, क्या वो सब स्पेस हैं या नहीं है। ठीक है, मान लो W है आपके पास, x y 0 और x y बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो आपने बताना है कि क्या ये सब स्पेस है, क्या ये सब स्पेस है। हाँ बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा टाइम W प्लस W1 W2 करके देखिए क्या आ रहा है, कैसे एलिमेंट आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना, अल्फ़ा x अल्फ़ा y x1 y1, ठीक है, प्लस W कुछ साथ में ऐड होगा यहाँ पे, W1 W2 और ये 0। तो ऐसे ही एलिमेंट मिल रहे हैं हमें पास, बिलोंग्स टू W, तो ये तो बनाएगा। ठीक है, और ये देख लेते हैं W2, एक और है, लेके चलते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा बना रहा है कौन सा नहीं बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे x y बिलोंग्स टू R। ठीक है, जब इसकी बात करेंगे हम तो क्या ये क्लोज्ड है, क्लोज मतलब अगर W1 प्लस W2 दो वेक्टर उठा तो क्या बनेगा, देखो x1 x2 y1 y2 और ये 2 बन जाएगा।
2 बन जाएगा, पर वेक्टर में एलिमेंट आएगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो बिलोंग करेगा नहीं W, इसका मतलब नॉट वेक्टर स्पेस, नॉट सब स्पेस। ठीक है, ठीक है ना। कैसे किए समझ गए। W यहाँ से उठा लिए, देखो अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, अगर यहाँ से मैं वैल्यू उठा लूँ, देखो x1 2 वेक्टर्स उठाने हैं ना मुझे, W1 W2 कहाँ से, W से, तो जैसे उसकी शक्ल है वैसे उठानी पड़ेंगी। तो उठा लिए, इसको ऐड कर दूँ तो क्या आएगा, x1 + x2 y1 y2 और ये 2 आएगा, और ये यहाँ पे 2 आ गया, पर आना 1 चाहिए था, क्योंकि शक्ल जो है W एलिमेंट जो शक्ल है वो वहाँ पे यहाँ 1 है। तो इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग्स टू W, इट्स नॉट अ सबस्पेस। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ऐसे मैट्रिसेस में बन जाएंगे। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 0 है। ठीक है, डिटरमिनेंट 0 है। ठीक है, देखो इसी को जो उठा लेते हैं, देखो मैट्रिक्स सेट ऑफ, देखो मैट्रिक हमें पता है MNR, ये आपके पास वेक्टर स्पेस बनाता है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ ये ऐसे मैट्रिसेस। ठीक है, A बिलोंग्स टू MN, ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज 0। ठीक है, अब n क्रॉस n की इतने दूर की जाना, n2 पुट करके देख लेते हैं, देखो n 0, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। इसका मतलब ये यहाँ बिलोंग कर रहा है 0 0 0 1, ये भी इसका डिटरमिनेंट भी 0 है। तो जिस इसका डिटरमिनेंट 0 वो सारी किस में है, इस सेट में। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, एडिशन होल्ड करनी चाहिए ना अगर वेक्टर स्पेस है तो, पर इसका डिटरमिनेंट तो नॉन 0 है, इसका नाम A दे, इसका नॉन 0, इसको ये तो इसमें W में जा ही रहा, इसका मतलब W इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रेस के लिए कर सकते हो। ठीक है, ट्रेस के लिए कर सकते हो, या फिर क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे बहुत से केसेस हैं। फंक्शंस के केस में कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, इवन ऑड फंक्शंस। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं हैं, ऐसे फंक्शंस आपको हर डोमेन में आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है अलजेब्रा ऑफ स्पेसेस। क्या होता है अलजेब्रा ऑफ स्पेसेस। ठीक है, कि अगर 2 सब स्पेसेस हैं तो उनका अलजेब्रा मतलब एडिशन, यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन, उनकी बात चर्चा करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती। ठीक है, तो क्या है, अगर W कोई सब स्पेस है, देखिए मैं शॉर्टकट ऐसे लिख रहा हूँ, सब स्पेस है, और W2 भी कोई सब स्पेस है। ठीक है, तो W1 इंटरसेक्शन W भी सब स्पेस होगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, ये भी सब स्पेस होगा ऑफ वेक्टर स्पेस जो भी उसने V/F दी है। ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, आसान है, क्योंकि अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड और W बिलोंग्स टू ये। अगर ये इसको बिलोंग कर रहे हैं, देखो इधर से क्लियर हो जाएगा, अगर ये दोनों इसको बिलोंग करें, इसका मतलब V बिलोंग्स टू W1 एंड V बिलोंग्स टू W2, W also belongs to W1 एंड W also belongs to W2। अगर दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं तो हम अभी पीछे करके आए थे कि इसका मतलब है अल्फा ऑफ V प्लस W होल्ड करेगा। ठीक है, होल्ड करेगा ना, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा किसमें, W1 इंटरसेक्शन W2 में। ठीक है, दोनों में होल्ड करेगा। तो इसका मतलब है ये अगर ऐसा है तो हम कहेंगे क्योंकि नेसेसिटी सफिशिएंट कंडीशन, इसका मतलब ये भी क्या है, वेक्टर स्पेस। तो अगर W1 वेक्टर स्पेस है, W2 वेक्टर स्पेस है, तो उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा। ठीक है, अब कितने मर्जी एनी नंबर ऑफ सब स्पेसिस, अगेन या सब स्पेस, जितने मर्जी आप सब स्पेस ले लो, सभी क्या बनाएंगे, आपके पास सब स्पेस बनाएंगे। ठीक है, सभी क्या बनाएंगे, सब स्पेस। अब सेकंड आता है 2 सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस आर सेट टू बी डिसजॉइंट। ठीक है, 2 सब स्पेसिस को, मान लो एक सब स्पेस है मेरे पास,
एक सब स्पेस है W1, ठीक है, और एक स्पेस है W2। इसको हम डिसजॉइंट कब बोलेंगे? डिसजॉइंट सब स्पेस कब बोलेंगे? जब W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आएगा? एम्प्टी। और ज़ीरो स्पेस अगर ऐसा होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि कैसे हैं डिसजॉइंट। जैसे एग्जांपल के लिए हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो सब स्पेस बनाती हैं। जब अगर आप बात हो तो मैट्रिक्स सब स्पेस की, अगर इसकी बात करते हैं, ये मुझे पता है ये वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। तो जब आप मैट्रिसेस लेते हो ऐसी मैट्रिसेस, ठीक है, मैंने W उठाया, देखो W उठाया, इसमें सारी वो मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। इसमें सारी सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, सिमेट्रिक उठा ली W2, इसमें वो सारी मैट्रिसेस सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A, इसमें ये दोनों सब स्पेस बनाते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हो ये दोनों क्या बनाते हैं? सब स्पेस। तो जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो आता है एम्प्टी से, ठीक है। तो डिसजॉइंट सब स्पेस ही है। वैसे ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन भी क्या बनाती हैं? इनका इंटरसेक्शन भी क्या बनाता है? डिसजॉइंट, ठीक है। इवन ऑड फंक्शंस की बात कर लो, वो भी डिसजॉइंट, दे विल आल्सो हैव अ डिसजॉइंट इंटरसेक्शन, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगर मान लो यूनियन की बात करें, इंटरसेक्शन बनाता है तो, बट यूनियन इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। जैसे अगर मैं R2 की बात करूँ, ठीक है, पूरे का पूरा R2 मैंने उठा लिया, ये वेक्टर स्पेस है, बिल्कुल है। अब इसका सब स्पेस उठाता हूँ, एक मैंने उठा ली एक एक्स एक्सिस, ठीक है, जैसे x0, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? ये सारे, ठीक है, W2 ये सब स्पेस है, 0y सारे एलिमेंट जो किस पे हैं? y एक्सिस पे, सारे उठा लिए। अगर मैं यूनियन करूँगा इनका, W1 यूनियन W2, तो ये वेक्टर स्पेस में बनेगा, नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्यों? क्योंकि देखो 1 0 बिलोंग्स टू W1, राइट, एंड 0 1 बिलोंग्स टू W2, राइट। बट इनका एडिशन देखो, 1 0 0 1 क्या बनेगा? 1 1 1 1 कहाँ आता है? 1 1 तो यहाँ आता है, यही इस यहाँ पे। बट यूनियन में तो सिर्फ ये दो चीज़ें आ रही थी, एक तो ये, तो जो इस पे पॉइंट है, बट अब जो एडिशन करो तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये तो डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, तो क्लोज नॉट क्लोज्ड, इसका मतलब नॉट अ सब स्पेस, नॉट अ सब स्पेस, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना कि ये सब स्पेस नहीं बनाता, यूनियन वाला सब स्पेस नहीं बनाता, ठीक है। अब नोट बनाता कब है, ये चीज़ है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस ऑफ V over F, देन W1 यूनियन W2 is a subspace if and only if one is contained in other। अगर एक दूसरे में कंटेन है, या तो दैट इज, या तो क्या होगा, या तो W1 इज कंटेन्ड इन W2 होगा, और W2 इज कंटेन्ड इन W1, तभी वो सब स्पेस बनाएंगे, अदरवाइज दे विल नॉट मेक अ सब स्पेस, ठीक है। प्रूफ इज ईजियर वन, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ठीक है, दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है, कि वो सब स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा। जैसे मान लो मेरे पास वेक्टर स्पेस है R3 over R,
ठीक है, ट्रिपलेट्स है मेरे पास। और मान लो W1 मैंने उठाया A B A प्लस B सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R, ठीक है। और W2 मैंने उठाया A B C सच दैट A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 और A प्लस B माइनस C इक्वल टू 0, ये उठा लिया। तब W1 यूनियन W2 ये सब स्पेस है कि नहीं, और तो कब सब स्पेस होगा, जो वन इज कंटेंट इन अदर, ठीक है। कब सब स्पेस होगा, जब एक जो है वो दूसरे में कंटेंट होगा, तभी बनाएगा, और तो कुछ चांसेस है नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं W2 को अगर मैं ध्यान से देखूँ, W2 को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो W2 क्या है, ठीक है। इसको अगर देखो, इसको अगर ये हटा दूँ, ठीक है। अब देखो, अगर W2 क्या है इस केस में, W2 क्या है, W2 क्या है A B C सच दैट C इज इक्वल्स टू A प्लस B। तो देखो ये W1 तो बन गया, W1 तो बन गया, तो इसका मतलब W2 इज कंटेन्ड इन W1, और जब भी कंटेनमेंट होती है देन वी से दैट देयर यूनियन इज अ सबस्पेस, ठीक है, देयर यूनियन इज अ सबस्पेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ V ओवर F, देन W1 माइनस, या फिर ऐसे कर दो W2, ठीक है, ऐसे कि हटा दिया आपने W2 इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, वहाँ वेक्टर स्पेस नहीं बनता, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल किया था, जैसे मैं अगर R2 की बात करूँ, R2 ओवर R की बात करूँ, तो W1 अगर मैं एक्स एक्सिस लूँ और W2 अगर मैं वाई एक्सिस लूँ, तो ये दोनों सब स्पेस हैं, ठीक है। बट अगर मैं क्या करूँ, W1 में से W2 हटा दूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो 0 हट जाएगा, ठीक है। ये देखो एक एक्स एक्सिस है, जब मैंने वाई एक्सिस हटा दी, ये हटा दी मैंने, मतलब ये हटा दी, तो 0 के साथ में यहाँ पे 0 पीछे हट गई ना, ये तो सेपरेट हो गया, अब आइडेंटिटी तो गायब होगी बीच में, ठीक है, 0 हट गया ना यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब अभी आएगा क्या, x0 x बिलोंग्स टू R माइनस कौन सा एलिमेंट हट गया, बाकी एलिमेंट तो हैं पर एक एलिमेंट हट गया 0 0, तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो गायब ही हो गया, आइडेंटिटी तो निकल गई यहाँ से, तो नॉट है सब स्पेस, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट concept that we have is the linear combination, the linear combination, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। till now you have to practice the questions and comment if you have any issues, ठीक है, comment if you have any issues. Thank you so much, see you in the next video.